So children, we have studied simple permanent tissue. Now we are going to study complex permanent tissue. The difference between simple permanent tissue and complex permanent tissue is that these type of tissue, complex permanent tissue, are made up of different kinds of cells. ठीक है, they are made up of more than one type of cell. All these cells coordinate to perform a common function. Like in a simple permanent tissue, they were having the same kind of cells and they were doing same function, but here the cells are totally different from each other. Their structure is different from each other, but they all work for a common function. Like xylem and phloem are examples of such complex tissues. They are conducting tissue, means they help in conduction of water, mineral and food, and they form a vascular bundle. What do you mean by vascular bundle? Vascular bundle means they are conducting tissue. Conducting means they help to transport water, mineral and food. Okay, they are helpful in conducting water, so they are known as conducting tissue and make the conducting bundle. Now is a vascular conductive tissue is a distinctive feature of the complex plants, means big plants. You please remember and understand these concepts, because these concepts actually make your path for the higher classes. So if you do not understand now, then it will be very difficult for you to understand in the higher classes. So if this is a vascular bundle I am making here, so ये एक vascular bundle है, तो यहाँ एक पार्ट जो होगा xylem होगा, दिस इज xylem, और ये phloem होगा. इसी तरह का रिंग बना रहता है. अगर हम एक स्टेम की बात करते हैं, एक्स पी, देन एक्स पी, like this. So I have taken a cross section, means अगर हम एक स्टेम को काटते हैं तो ये इस तरह का रिंग जैसा कुछ दिखता है, इस तरह से रिंग फॉर्म. दिस इज लाइक रिंग. तो हम एक साथ इसको दिखा सकते हैं. सपोज इफ आई हैव टेकन दिस पेन्स, लेट मी शो यू. I have taken this pen. I have taken this pens. अगर हम इसको इधर से काट रहे हैं, यहाँ से ऐसा काट दे रहे हैं, तो जो स्ट्रक्चर दिखेगा, दैट इंटरनल स्ट्रक्चर, दीज आर द कंडक्टिंग टिश्यूज. ओके, लेट मी शो यू. दीज आर द कंडक्टिंग टिश्यूज. ये सब अलग अलग दिख रहे हैं एक दूसरे से. दे आर वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, बट दे आर इन अ बंडल. वो बंडल फॉर्म में है, एक साथ जुड़े हुए हैं, ताकि इधर से फूड पास हो, इधर से वाटर पास हो, और दे आर लाइंग टुगेदर, मतलब एक साथ लंबाई में पूरे लंबाई में जितना लंबा स्टेम, ब्रांच, रूट सब होता है. बिकॉज दिस कंडक्टिंग टिश्यूज आर प्रेजेंट इन फ्रॉम द दे आर प्रेजेंट इन द रूट, स्टेम, ब्रांचेस अप टू द लीव्स. क्योंकि जब हम लोग पानी, वाटर इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द रूट्स एंड इट गोज अप टू द लीव्स, और खाना जो है लीव्स में प्रिपेयर होता है, फूड, एंड इट गोज अप टू द रूट. सो दिस आर द पाइपलाइन लाइक थिंग्स. दीज आर फ्रॉम टॉप टू बॉटम दे आर प्रेजेंट. अगर हम यहाँ से इसको काटते हैं, गोल से इसको काट देते हैं, तो जो स्ट्रक्चर दिखता है वो ये स्ट्रक्चर, इस तरह का स्ट्रक्चर दिखता है. से ऑल आर डिफरेंट. दीज सेल्स, ये एक टिश्यू बनाया, वैस्कुलर टिश्यू. ये एक जाइलम टिश्यूज हो गया, and this is phloem tissue. This is phloem tissue and this is xylem tissue, and they are made up of different type of cells. ये अपने अपने अलग अलग दिख रहे हैं, तो they are different, और ये different. These cells are different and these cells are different. Ultimately it makes a complex type of tissue. Then they are present in complex plants, means a big plants. Xylem consists of tracheids. Now see, xylem consists of tracheids, vessels and xylem parenchyma. ये ट्रैकिड्स ऐसा शेप के होते हैं,
वेसल्स ऐसे शेप के होते हैं, पिट्स है उसमें, छोटे छोटे गड्ढे हैं. नाउ साइटोप्लाज्म. दिस साइटोप्लाज्म, सॉरी, पैरेन्काइमा कंसिस्ट ऑफ साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस. फिर ये पैरेन्काइमा इज सिंपल टिश्यू ओनली. ठीक है, दिस इज सिंपल टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू. दिस टाइप ऑफ सेल्स आर सिंपल, बट वेसल, ट्रैकिड, ये सब मिला करके मेक्स इट इट गिव्स इट अ लुक ऑफ अ कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ टिश्यू. नाउ व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ द जाइलम? दे आर थिक वॉल्स, dead cells. Many of them are dead cells. Tracheids and vessels are tubular structures, tube-like structures. They allow to transport water and mineral. Parenchyma stores food and help in the sideways conduction of water. Sideways, अगल बगल, लंबाई में क्या ट्रैवल करता है? ट्रैकिड्स एंड वेसल्स हेल्प करता है वाटर को ट्रांसपोर्ट करने, बट साइडवेज पैरेन्काइमा इज हेल्पफुल. फाइबर्स आर मेनली सपोर्टिव इन फंक्शन. तो क्या क्या हो गया? Xylem consists of tracheids, vessels, parenchyma and xylem fibers. So उसका अपना अपना अलग काम है. Phloem is made up of 4 type of elements. कौन कौन सा 4 type of elements? They are sieve tubes, companion cells, phloem fibers, phloem parenchyma. ठीक है. sieve मतलब क्या होता है? छलनी. छलनी के जैसा जो ट्रैवल करना है, जो फूड ट्रैवल करना है, वो छलनी से पार होके जाता है. दे आर मेड अप ऑफ 4 टाइप ऑफ एलिमेंट्स: सीव ट्यूब्स, कंपानियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर्स, फ्लोएम पेरेन्काइमा. सीव ट्यूब्स आर ट्यूबुलर विथ परफोरेटेड वॉल. व्हाट डू यू मीन बाय परफोरेशन? उसमें छेद हैं, जैसे छलनी में छेद होते हैं ना, ताकि चीज़ें नीचे की ओर जाए, वैसे सीव ट्यूब्स में छेद होते हैं ताकि फूड उसमें से ट्रैवल होके जाए. फ्लोएम इज अनलाइक जाइलम, दैट मटेरियल कैन मूव इन बोथ डायरेक्शन. जाइलम में क्या है कि वाटर कैन मूव इन बोथ डायरेक्शन जाइलम में, बट फ्लोएम में क्या है? इट ओनली यूनिडायरेक्शनल. इट इज़ यूनिडायरेक्शनल मीन्स व्हाट हैपेंस? as phloem is dealing with the transport of the food from the leaves, so वो एक ही डायरेक्शन में जा सकता है. लीव से नीचे की ओर ट्रांसफ़र कर सकता है, या लीव से किसी और की ओर ट्रांसफ़र कर सकता है, बट इन जाइलम इट इज़ बाई डायरेक्शनल. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है. फ्लोएम इज़ अनलाइक जाइलम, कैन मूव इन बोथ डायरेक्शंस इन इट. फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम, अच्छा सॉरी, आई हैव डिस्कस्ड इट इन अ रॉन्ग वे. देखो जाइलम में क्या हो रहा है और फ्लोएम में क्या हो रहा है. जाइलम में यहाँ सपोज रूट है, तो रूट से लीव्स की ओर जाना, ऑलवेज रूट से लीव्स की ओर जाना, या ब्रांचेस की ओर जाना, या स्टेम की ओर जाना. सो इट इज़ वन डायरेक्शन ओनली. बट इन फ्लोएम क्या हो रहा है? अगर ये नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, फ्रॉम बॉटम टू top, water is flowing from bottom to top, it is going from bottom to top, so it is one direction only. But in phloem what happens? phloem में क्या हो रहा है? it is going, यहाँ सपोज इस पोजीशन में लीफ है, तो लीफ से फिर वो ऊपर की ओर जा रहा है. यहाँ क्योंकि ब्रांच है, यहाँ और एक ब्रांच है, तो वो ऊपर की ओर जा रहा है, और फिर इधर भी जा रहा है क्योंकि इधर रूट है. क्योंकि खाना रूट्स में भी पहुँचना है, स्टेम में भी पहुंचना है, दूसरे ब्रांचेस में भी पहुंचना है, इधर भी पहुंचना है, उधर भी पहुंचना है, हर तरफ पहुंचना है. सो इन फ्लोएम इट इज बोथ डायरेक्शंस, डाउनवर्ड टू अपवर्ड, upward to downward. It can move any direction from phloem. Food can move in any direction, both directions. ठीक है, food can move in both direction. But in xylem, food can move only from bottom to top. This was about the xylem and phloem complex permanent tissue. You make it in your copy, xylem and phloem. Then we will go to the next topic.